Hello friends, this is Akshay Kadam. Welcome to the platform of Darshanik IAS. So guys, on this platform of Darshanik IAS, today I am going to discuss of you in UPSC topic, in which I am going to discuss with you guys the types of question or categories of questions that UPSC is asking, or we will try to understand the suffixes and what you supposed to write in those answers. Now, this is the third part three of this series that I am discussing with you. In part one, guys, I have discussed with you all these 11 categories of questions that UPSC is asking, and almost 45 suffixes, 45 suffixes that UPSC has been using while asking those questions. I have discussed in part one, and in part two, I have discussed in detail all the in each and every category one or two questions I have already discussed. So do check out my YouTube channel for part one, part two. Okay. Today, guys, I'm going to discuss this first segment in detail. Okay. When questions are of types like write factors, feature, characteristic, causes, enlist, enumerate, etc. Okay. So yesterday in previous two lecture, I will quickly revise that for you. I told you that category of question where there is a suffix, factors, features, characteristic, causes, enlist, enumerate. Okay, if it is these kind of suffixes, then you need to provide comprehensive list, organized list, multi-dimensional list. If suffixes are evaluate, discuss, assess, critically evaluate, I told you strength and weaknesses, pros and cons, advantages, disadvantage, balanced viewpoint. Then comment in your opinion, according to you, do you agree? What do you understand? You need to express your thoughts, but there is no need of evidence. You can write in your own thoughts. But if there is evidence or some thinker to back your answer, that's well and good. Then justify, prove, give reasons, illustrate, argue, substantiate. Then you need to provide a concrete evidence, hard evidence, credible evidence, and logical support. Okay, to your answer, you need to validate, provide validity to your argument. You need to validate it by presenting some case study also. Then critically analyze, examine, elaborate, reflect. Okay, then examine the issue in depth, looking at its components, underlying assumptions, and implications. Okay, you need to have an objective questioning of existing knowledge or a methodical examination of the topic. You need to go in extremely detail. Then highlight significance important. I told you that you need to bring out most significant parts, most important points, and bring your attention to it. Why topic is essential, why it matters, etc. Okay, you need to establish the relevance of the topic. Then describe, elucidate, explain, outline. You don't have to go much in detail like critically analyze that kind of questions, but you can provide only a detailed account, summary of the topic or general outline or pattern of the question. So you need to provide the information in very easy to understand manner, so any person who is reading it can understand the entire outline or get the detailed perception about the subject. Then I told you suggest measures. You need to provide possible solutions, strategies, or ideas. Okay, you need to come up with very innovative solutions. Then compare, where you can write both similarity and differences. While contrast, distinguish, differentiate, you need to highlight majorly the differences. And then implications. I told you need to focus on potential consequences, effects, outcomes. Okay, here you have extreme liberty to show your talent, how different solutions or different consequences that you can predict for particular argument in the question. So now in today's lecture, guys, we are going to discuss this first segment of segment. Okay, that is factors, feature, enumerate, characteristic, enlist, causes. If UPSC is ask you question in this category with all these suffixes used, okay, then what you supposed to do, or uske liye I am going to discuss with you 6-7 questions. Okay, these are the previously asked questions by UPSC, and in what answer it is expected and how you should be writing these answers, that I am going to discuss in today's lecture. So guys, I already told you factor, feature, enumerate, characteristic, enlist, causes. For all such a type of question, guys, and even suggest measures or और आपका implications. Okay, तो ये जो कैटेगरी implication, suggest, measure कैटेगरी, और ये factor, feature, enumerate, characteristic, enlist, causes. अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं गाइस, then I already told you, no need of intro, no need of conclusion. You can write directly the pointers. Okay, what question demand is you need to enumerate, give the list, itemize
itemized list, okay, in detailed list, okay, multiple components, multiple dimensions of the question. So you need to provide a very comprehensive and organized list, multi-dimensional list. Okay, and here I told you guys that you need to you should not be writing the vertical answer, that is you should not go in detail, किसी दो तीन टॉपिक को डिटेल में आप एनालाइज कर रहे हो, इससे बेटर ऑप्शन है गाइस, यू नीड टू राइट अ हॉरिजॉन्टल आंसर, तीन चार टॉपिक्स ही ले लो, ओके, सॉरी 8-10 आर्ग्यूमेंट को, ओके, ज्यादा मत एक्सप्लेन करते मत बैठो, बट 10-12 पॉइंटर्स मार दो क्वेश्चन में, एंड दैट विल गेट यू मोर मार्क्स. नाउ हाउ टू राइट हॉरिजॉन्टल आंसर, उसके लिए यू नीड टू बी मल्टी डायमेंशनल, एंड हाउ टू राइट मल्टी डायमेंशनल आंसर, उसके लिए मैं अलग से एक रिकॉर्डिंग करूंगा बाद में कभी, जब मेरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन आंसर राइटिंग पे, तो मैं वो अपलोड करूंगा. आई विल गिव यू वन मल्टी डायमेंशनलिटी चार्ट, और उसको कैसे यूज करना है इवन व्हेन यू डोंट नो द आंसर, ओके, अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एटसेट्रा, दैट आई विल गिव यू इंफॉर्मेशन. सो इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने जो आपको बताया गाइस कि राइट मल्टी डायमेंशनल लिस्ट, ओके, मल्टीपल पॉइंटर्स. तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यूपीएससी के, ओके. जनरली मैं क्वेश्चन GS1 या GS4 के ज्यादा ले रहा हूं क्योंकि दैट्स माय स्ट्रॉन्ग एरिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह GS1 एंड इथिक्स एंड एसे पेपर. सो आई टीच एट, एज यू नो, एट खान स्टडी ग्रुप एसे एंड इथिक्स सेगमेंट. सो वो क्वेश्चंस मैं ज्यादा अपने सीरीज में डिस्कस करूंगा. सो दीज आर सम क्वेश्चंस लाइक इनुमरेट द मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, then enlist factors that led to industrial revolution of Britain in 18th century. Then Pala period is most significant phase in the history of Buddhism in India. Enumerate. Okay. Then how does Indian society maintain continuity in traditional social value? How? Enumerate. Causes. Causes मतलब how, उसी में आता है. Enumerate the changes taking place in it. Then enumerate the problems and prospects of inland water transport. Then what ways? So what ways, causes, how, why, इनुमरेट फैक्टर, वही सब उसी कैटेगरी के क्वेश्चन है. इन व्हाट वेज पैट्रियार्की इंपैक्ट पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया. एंड देन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज 1761, बट व्हाई वेयर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत, अगेन व्हाई. सो व्हाई, हाउ, एंडलेस कॉजेस, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो गाइस मल्टीपल पॉइंटर्स. सो अब इनुमरेट द मेजर कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये क्वेश्चन है आपका पहला. नाउ गाइस सी, कौन सा स्टूडेंट है जो प्रीलियम क्रैक करके गया है एंड मेंस लिख रहा है जिसको इसकी रीजंस नहीं आएंगे. आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को पूछो कि व्हाट आर द कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड ही विल राइट. तो फिर इस केस में गाइस मार्क्स क्यों आएंगे, ओके, इफ यू वांट, बिकॉज एवरीवन इज गोइंग टू सॉल्व दिस, एवरीवन गोइंग टू राइट 4-5 पॉइंटर्स, 6 पॉइंटर्स, लेकिन आप कितने ज्यादा पॉइंटर्स लिख रहे हो, कितने ज्यादा लेवल पे लिस्ट दे रहे हो कॉजेस की, ओके, वहीं पे सारा गेम चेंज है. कम से कम 10-12 हर ऐसे क्वेश्चन में फैक्टर्स होनी चाहिए. और उसके बाद जब ये 10-12 फैक्टर्स आप दे रहे हो, सेकंड चीज है, तो मैं पहले जो आपको बोला, यूपीएससी इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो उसका एक बेसिक रूल है, राइट मोर देन अदर्स. बाकी 6-7 लिखेंगे, आप 8-10 पॉइंटर्स लिख के आओ, इट्स अ कंपटीशन इन द एंड. देन राइट मोर देन अदर्स एंड देन राइट डिफरेंट देन अदर्स. ओके, यूनिक पॉइंट्स लिखो जो किसी को कोई लिख नहीं पाएगा, या मोस्ट कोर इशू को हिट कर पाओ, इस तरह के कोई यूनिक एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप दे दो. तो राइट मोर देन अदर्स, राइट डिफरेंट देन अदर्स, एंड राइट विद द स्ट्रेटेजी. तो यहां तो स्ट्रेटेजी इतनी है कि राइट मल्टीपल पॉइंट्स. तो फिर डिफॉरेस्टेशन के क्या कॉजेस होंगे, तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर एक्सपांशन एक मेजर रीजन है. देन लॉगिंग, जो वुड कटिंग फॉर एलपीजी वगैरह, जो गैस सिलेंडर महंगे हो जाते हैं तो लोग पेड़ काट के चूल्हा जलाना चालू करते हैं. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाइक मुंबई मेट्रो, जो आरे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा है. Then unplanned urbanization, okay, lot of unplanned urbanization that is happening, rapid urbanization, और उसमें भी unplanned urbanization, जिसमें, और आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी देना है 1-2 लाइन में, और वो बहुत शॉर्ट एंड स्विफ्ट वर्ड्स में देना है. फॉर एग्जांपल अनप्लैंड अर्बनाइजेशन, डॉट डॉट वहां पे आगे लिखो, दैट रैपिड अनप्लैंड अर्बनाइजेशन विच डज नॉट लीव स्पेसेस, ओके, फॉर द इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट और फॉर फॉरेस्ट्री एटसेट्रा. ओके, खत्म वहीं पे वो पॉइंट. देन माइनिंग, फॉर एग्जांपल इन वेस्टर्न घाट्स लार्जली फॉर आयरन एटसेट्रा, या जो स्टील माइंस है आपके उड़ीसा, झारखंड वगैरह रीजन में, तो वहां पे कोल, आयरन इनके माइनिंग के लिए, तो बहुत शॉर्ट एंड स्वीट. और मैं जो बोल रहा हूँ ये सारे पॉइंटर तो दूसरे भी लिखेंगे, आप उसमें थोड़ा यूनिक एलिमेंट डालो. तो माइनिंग का पॉइंट जो है यहाँ पे फिर आप एग्जैक्टली बताओ कि माइनिंग कहाँ पे. सो बॉक्साइट माइनिंग इन वेस्टर्न घाट्स, ओके, आयरन स्टील कोल माइनिंग इन झारखंड एटसेट्रा. तो वो एक एक्स्ट्रा लाइन जो आप ऐड करोगे दैट गिव्स एक्स्ट्रा एज टू यू.
देन फ्यूल वुड एंड चारकोल प्रोडक्शन, उसके लिए भी चारकोल प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा पेड़ कटिंग करके वो यूज किया जाता है। देन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, स्पेशली शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन एटसेट्रा, या जो पूरा एग्रीकल्चर हार्वेस्ट होने के बाद जो एरिया जलाया दिया जाता है जिसमें फॉरेस्ट फायर्स भी लग सकती है। ओके, ये सारी जो प्रैक्टिसेस है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उसकी वजह से भी देयर इज मेजर इशू ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देन क्लाइमेट चेंज, वन ऑफ द मेजर रीजन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ड्रॉट बढ़ रहे या कुछ रीजन पे हेवी रेनफॉल, फ्लैश फ्लड्स, साइक्लोन वगैरह हिट होने की वजह से भी जो फॉरेस्ट को डैमेज होता है। देन लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, बहुत बार लोग जानवरों को ग्रेस करने के लिए ऐसे ही फॉरेस्ट एरिया में ले जाते हैं, तो जो छोटे छोटे नए नए फॉरेस्ट प्लांट भी किए होते हैं, ओके, दे गेट डिस्ट्रॉयड लार्जली, या फॉरेस्ट फायर या लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग, ये मेजर प्रॉब्लम है। स्पेशली लाइक जो न्यूली प्लांटेड फॉरेस्ट है बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, छोटे छोटे पेड़ होते हैं तो वो लाइफ स्टॉक खा जाती है एक्सेट्रा, तो ये एक पॉइंट। देन लैंड ग्रैबिंग एंड लैंड इंक्रोचमेंट, बहुत सारे फॉरेस्टेड एरिया पे लैंड इंक्रोचमेंट करना, लैंड ग्रैबिंग करना जो मेजरली सिटीज एरियाज में होता है, दैट इज वन ऑफ द मेजर इशू। देन आपके नेचुरल कॉजेस, ओके, बहुत सारे दिन नेचुरल कॉजेस भी है आपके फॉरेस्ट के रिलेटेड। नेचुरल कॉजेस में फॉरेस्ट फायर्स भी आएगा, या बहुत बार फ्लडिंग या आपका ये साइक्लोन वगैरह के जो डैमेजेस है उसकी वजह से, या कोस्टल एरिया का सबवर्जन होना, उसकी वजह से भी बहुत सारा फॉरेस्ट गेट्स डिस्ट्रॉयड। या क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पर्टिकुलर इकोलॉजिकल हैबिटेट है या पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी के जो पेड़ है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, आई गेस दैट पॉइंट गॉट रिपीटेड। सो गाइज, मैंने ऑलमोस्ट 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पॉइंट्स दिए। अगेन दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ऐसे पॉइंटर सिर्फ डालो और एक एक शॉर्ट लाइन में उसको एक्सप्लेन करो, यू विल गेट मोर मार्क्स। Same way, there was a question, enlist the factors that led to industrial revolution of Britain in 18th century. अब इसमें गाइज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी ब्रिटेन में ही क्यों हुआ, या पहली बार वहां पे हुआ, क्या रीजंस है। अब इसके भी गाइज बहुत सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे कितने ज्यादा फैक्टर लिखो यू विल गेट मोर मार्क्स। ओके, तो कोई भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है तो उसके लिए कौन सी चीजें जरूरी होती है, तो कोई भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के लिए गाइज 5 चीजें बहुत जरूरी है। एक है आपका कैपिटल, दूसरा है आपका इनोवेशन, देन यू नीड अ मैन पावर लेबर सप्लाई, and then you need a raw material, and then you need a markets. Okay, so innovation, capital, labor, raw material and markets. Okay, लंदन के पास ये पांचों चीजें थी, तो हर एक पे पांच छह पॉइंट लिखो, और ये यूनिक कोर पॉइंट्स आप पहले लिखो। ओके, आंसर में तो जितना अलग लिख रहे हो, जितना ज्यादा पॉइंटर्स लिख रहे हो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो गाइस, इनोवेशन, यस, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, तो वहां पे स्टीम इंजन, गिनी मशीन एटसेट्रा, इनके जो रिवोल्यूशंस या साइंटिफिक इनोवेशंस हुए, एक वन ऑफ द मेजर रीजन था। देन उसके बाद एग्रीकल्चर सरप्लस, जो पोटैटो वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ यूरोप में, लंदन में फूड सिक्योरिटी आई, एग्रीकल्चर सरप्लस हुआ, और उसके एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से जो फूड सिक्योरिटी आई, ओके, देयर वाज अ लेबर, फर्स्ट टाइम लेबर increase in population, there was increase in population and there was increase in labor, and which acted as a labor to the industry. So human labor भी काफी अवेलेबल था, and urbanization की जो ट्रेंड चल रही थी यूरोप में, वो एक रीजन था। देन कैपिटल, कोई भी इंडस्ट्री डालनी है तो कैपिटल चाहिए, जो इंडिया ने प्रोवाइड किया थ्रू कॉलोनीज। जस्ट प्लासी के 1757 के बैटल के 2 साल बाद 1759 इंडिया में, सॉरी, लंदन में पहली फैक्ट्री बनी, तो कॉलोनीज थी उनके पास जिन्होंने कैपिटल सप्लाई किया, कॉलोनीज थी जिन्होंने रॉ मटेरियल सप्लाई किया। ओके, और कॉटन, इंडिगो एटसेट्रा, और बहुत सारा रॉ मटेरियल जो इनिशियल इंडस्ट्री के लिए चाहिए, कोल एंड आयरन, लंदन के पास दोनों अबंडेंट सप्लाई में था, लंदन के लंदन यूनाइटेड किंगडम में। देन आपका मार्केट्स, ओके, इनिशियली लंदन का मिडिल क्लास जो अभी बन रहा था अर्बनाइजेशन की वजह से, वो मार्केट का काम कर गया, फिर यूरोप मार्केट का काम कर गया, और बाद में जब नेपोलियन ने ब्रिटिश गुड्स को यूरोप में आने से रोका, बर्लिन डिक्री, मिलान डिक्री एटसेट्रा, तो ऑटोमेटिकली इन्होंने मार्केट्स शिफ्ट कर दिए हमारे इंडिया में इन कॉलोनीज में, तो वो भी मार्केट्स उनका अवेलेबल थे। तो ये कितने यूनिक एंड टू द पॉइंट आंसर लिखते हो गाइस, मल्टीपल पॉइंट्स एंड एग्जैक्टली टू द पॉइंट, नो बीटिंग अराउंड द बुश, एवरी पॉइंट शुड बी वेरी सॉलिड एंड स्ट्रांगली लिंक्ड विद द टॉपिक। ओके, इतने ये करो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। देन स्टेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर,
ओके लंदन में बहुत स्टेबल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था। सिविल वॉर लंदन में काफी साल पहले हुआ था, मैग्ना कार्टा इशू हुआ था, किंग की पावर काफी रिड्यूस हुई थी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी काफी वेल फंक्शनिंग थी। एंड कोई भी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है जो यूरोप में अब होने वाले थे, लाइक अमेरिकन फ्रेंच रिवोल्यूशन, नेपोलियन के बैटल्स, रशियन रिवोल्यूशन, अमेरिकन रिवोल्यूशन, इस तरह का कोई इन अनस्टेबल पॉलिटिकल क्लाइमेट लंदन में नहीं था। देन जोग्राफिकल लोकेशन, लंदन वाज सेपरेट जोग्राफिकली, उसकी वजह से लंदन वाज सेपरेटेड, हैड अ सेपरेट जोग्राफिकल लोकेशन, उसकी वजह से यूरोप के डिस्टर्बेंसेस लंदन नहीं जाते थे। देन उस टाइम ट्रांसपोर्ट रिवोल्यूशन हुआ था, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ शिपिंग ट्रांसपोर्ट। और लंदन जो बहुत सारी सिटीज उसकी कोस्टल रीजन में है, या बहुत सारा रिवर्स है वहां पे, इनलैंड एंड रिवर एंड ट्रांसपोर्ट, उसकी वजह से भी लंदन को काफी फायदा था। देन एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटलिज्म, लाइक ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे कंपनीज बनना, एंटरप्रेन्योर स्पिरिट काफी लंदन में डेवलप था। देन ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट लंदन में बहुत वेल ऑर्गेनाइज, लाइक इंडियन सिविल सर्विस जैसे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम डेवलप हो चुकी थी, एंड ऑर्गेनाइज ब्यूरोक्रेसी जो ये सारे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को बैक कर रही थी, या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट के तरफ से। देन वहां पे इनक्लोजर मूवमेंट भी हुई थी, जिसकी वजह से लॉट ऑफ स्मॉल लेबर्स शिफ्टेड टू द अर्बन सिटीज विच एक्टेड एज अ लेबर सप्लाई। देन सोशल चेंजेस लाइक राइज ऑफ मिडिल क्लास, वो भी एक सिग्निफिकेंट फैक्टर था। देन हिस्टोरिकल फैक्टर, जो 400-500 साल लंदन में जो चल रहा था, लाइक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, यूरोपियन रेनेसांस, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन, साइंटिफिक एंड रिवोल्यूशन, जो वहां पे इन द फॉर्म ऑफ गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन, और इसी का कल्मिनेशन आगे जाके जो हुआ यूरोपियन एनलाइटनमेंट। तो यूरोपियन एनलाइटनमेंट में जो था, जो स्प्राउलिंग इंटेलेक्चुअल फिलोसॉफिकल मूवमेंट जो लंदन में चल रही थी, वो भी फाइनली लेड टू राइज ऑफ दिस वन ऑफ द हिस्टोरिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल। एडम स्मिथ जो मॉडर्न इकोनॉमी की थ्योरीज वगैरह दे रहा था, या मॉन्टेस्क्यू एटसेट्रा, उनके आइडियाज का काफी इन्फ्लुएंस था। देन एडवांस साइंटिफिक एजुकेशन जो साइंटिफिक रिवोल्यूशन से पैदा हुआ था, न्यूटन ने अपना प्रिंसिपिया मैथमेटिका 100-150 साल पहले ही पब्लिश किया था। तो एजुकेशन वाइज, साइंस वाइज लंदन वाज एक्सट्रीमली इन एडवांस स्टेज। एंड देन मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर था। ओके जो इनोवेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस का, इट लेड टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड मास इंफॉर्मेशन का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इंफॉर्मेशन बिकम इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल was also one of the important factor. Okay, तो सिंपली गाइज, इन फैक्टर, फीचर, इनोमरेट, एनलिस्ट, कॉजेस, कोई भी क्वेश्चन आए, पॉइंटर्स। सो मैंने यहाँ पे भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फैक्टर्स दिए गाइज। नथिंग कैन डिफीट दिस आंसर। अगर 16 फैक्टर्स लिख रहे हो ना गाइज, देन डजंट मैटर आपने कोई इंट्रो किया नहीं किया, कंक्लूजन कोई लिखा नहीं लिखा, you will be getting the marks only for these multiple factors. ओके उसके बाद एक क्वेश्चन था कि पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, इनोमरेट। ओके ये पाला पीरियड का सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन बताओ, इंपॉर्टेंट वंस, उसकी लिस्ट दो। तो यहाँ पे भी कुछ इंट्रो या कंक्लूजन मत करो, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पॉइंटर्स नहीं मिलते, तो थोड़ा बहुत इंट्रो की एक आध लाइन आप ऐड कर सकते हो कि पाला पीरियड क्या जो रीजन था, बंगाल उड़ीसा का रीजन में, इसी सेंचुरी में पाला डायनेस्टी के ये टाइम पे डायनेस्टी थी, where they patronized Buddhism to a significant extent, which we see in following points. इस तरह से आपने पाला का बेसिक इंट्रोडक्शन किया। सो पैट्रोनेज टू बुद्धिज्म उन्होंने काफी किया था। फॉर एग्जांपल धर्मपाल, देवपाल, ये जो उनके दो किंग्स थे, दे पैट्रोनाइज बुद्धिज्म टू ग्रेट एक्सटेंट। देन नालंदा यूनिवर्सिटी जो मॉडर्न फॉर्म में आई थी, ओके उसको भी उन्होंने काफी पैट्रोनाइज किया। देन बहुत सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट एंड आइडियाज को उन्होंने प्रिजर्व किया, डॉक्यूमेंट किया, और उसको काफी अच्छे से प्रिजर्व भी किया। उसके लिए नालंदा को काफी फंडिंग भी वो दिया करते थे। देन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म इन तिबेट एंड साउथ एशिया, उनकी जो जोग्राफिकल लोकेशन थी बंगाल उड़ीसा के रीजन में, और सिग्निफिकेंट बुद्धिज्म को जो बैकिंग था, उसकी वजह से वो तिबेट या साउथ एशिया में भी काफी एक्सपांड हुआ ड्यूरिंग देयर फेज और देयर टाइम पीरियड। देन सिंक्रेटिज्म एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, तो पाला टाइम पीरियड में गाइस यूनिक आर्ट फॉर्म्स भी काफी ओरिजिनेट हुए थे पाला पीरियड में। तो आपके यूनिक आर्ट फॉर्म्स जो है, जिसमें एक पाला आर्किटेक्चर या पाला स्कल्पचर, ये भी एक सिग्निफिकेंट आर्ट फॉर्म हमें ऑब्जर्व होता है।
देन काफी इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया था पाला पीरियड में, वेयर दे हैड लॉट ऑफ फिलोसॉफिकल डिबेट्स, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स यूज्ड टू टेक प्लेस इन पाला पीरियड. एंड देन कल्चरल एक्सचेंजेस, पाला पीरियड में उनके डायनेस्टी का काफी आजू बाजू के डायनेस्टी के साथ जो कल्चरल एक्सचेंज होता था, या साउथ एशिया तिबेट के साथ भी जो कल्चरल एक्सचेंजेस हो रहे थे, इट प्लेड वेरी सिग्निफिकेंट रोल देयर आल्सो. एंड उसके बाद गाइज आपका लीगेसी, भले पाला पीरियड हैड बीन डिक्लाइन, ओके, लेकिन उन्होंने जो ये ट्रेडिशन बुद्धिज्म को बैक करने की चालू की थी, वो उनकी एज अ लीगेसी आगे भी काफी साल कंटिन्यू हुई. एंड दैट्स व्हाई पाला पीरियड में यू वी सी अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिज्म इन दैट पीरियड. तो यहाँ पे भी गाइस 8-9 पॉइंट आपको देने पड़ेंगे, यूनिक पॉइंट, एंड यू नीड टू बैक ईच एंड एवरी पॉइंट विद द कोर एविडेंस, लाइक धर्मपाल, देवपाल, इन्होंने ये इन्होंने पैट्रोनाइज किया एटसेट्रा. तो ये कीवर्ड्स कितने ज्यादा लिखोगे ऐसे क्वेश्चन में, वो भी काफी हेल्प करेगा आपको. देन उसके बाद एक इथिक्स टाइप क्वेश्चन है या सोशल इश्यू टाइप क्वेश्चन है, दैट हाउ डज इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज. जो ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज है उनमें इंडियन सोसाइटी कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन करती है, एंड इनुमरेट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट. और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको आप इनुमरेट करो. ओके, 2 क्वेश्चंस हैं, तो दोनों क्वेश्चन पे कम से कम 7-8 पॉइंट आप लिखो. नो इंट्रो नो कंक्लूजन. तो सीधे हाउ इंडियन सोसाइटी मेंटेन्स कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज डॉट डॉट. अब गाइज इस तरह के क्वेश्चन का आपका आंसर नहीं भी आता, ओके, नॉट एन इशू, कोई डरने की जरूरत नहीं है. आप खुद सोचो कि आपके पास जो सोशल वैल्यूज आई, ओके, फिर वो कम्युनिटी ओरिएंटेशन हो एटसेट्रा, जो भी सोशल वैल्यू है आपको कहां से आई, कहां से आपने सीखी, और ऑन स्पॉट आंसर जनरेट करके भी लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं. सो हाउ दिस सोशल ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज आर मेंटेन. अब कौन सा स्टूडेंट है गई जो प्रीलिम क्रैक कर चुका है वो ये नहीं लिख सकता, ऑब्वियसली एवरीवन कैन राइट दैट. और इसीलिए आप कितने यूनिक पॉइंट लिखते हो गाइज, यू विल गेट मोर मार्क्स. ओके, सो हाउ इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी. तो पहला है गाइज आपका फैमिली ट्रेडिशंस. ओके, फैमिली से बहुत सारी वैल्यूज, सोशल वैल्यूज है, हम उसी से सीखते हैं, विच इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एजेंसी टू टीच अस दिस वैल्यूज. उसके बाद गाइज आपका ये जो है जॉइंट फैमिली सिस्टम, जॉइंट फैमिली सिस्टम से भी बहुत सारी सोशल लर्निंग, सोशल वैल्यूज हम सीखते हैं. देन फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उनसे भी हमें बहुत सारी सोशल वैल्यूज सीखने को मिलती है. पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एटसेट्रा, लाइक शिवाजी फेस्टिवल इन महाराष्ट्र, देन गणपति फेस्टिवल एटसेट्रा. Then religious practices, pilgrimage, kirtans, etc. So pilgrimages and kirtan जो religious practices है. Then role of villages. Okay. Then largely guys, ये इस तरह का कोई यूनिक पॉइंट लिखो कि लार्जली जो सोशल वैल्यूज है उससे आज हम जो स्ट्रांगली स्टिक कर चुके हैं, इंडियन सोसाइटी के जो सोशल वैल्यूज है वो लार्जली हमें विलेजेस में ऑब्जर्व होता है कंपेयर टू अर्बन एरियाज. ओके, पीपल प्रैक्टिस देयर कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कल्चर, रिलीजन मच बेटर वे इन विलेजेस, एंड विलेजेस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग institution or a system in which these social, cultural, religious values are being propagated quite in a best way. ओके, ज्यादा सोशल टच या कम्युनिटी ओरिएंटेशन, कम्युनिटी फीलिंग भी ज्यादा होती है विलेजेस में. देन आर्ट, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, इसके थ्रू भी बहुत सारी सोशल वैल्यूज गेट कंटिन्यूड. एंड इवन टीचिंग थ्रू इपिक्स, नॉवेल्स, ये जो हम पढ़ते हैं हमारे एंसेस्टर के बारे में हम पढ़ते हैं कि इपिक्स, नॉवेल्स, बुक्स, इनसे भी हमें हिस्ट्री के नॉवेल्स एक्सेट्रा बहुत सारी चीजें सोशल वैल्यूज के बारे में हमें पता चलता है. एंड देन हायरार्किकल सोशल ऑर्डर एंड कास्ट सिस्टम, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन यस, कास्ट सिस्टम एंड उसमें जो प्रिवेलेंट एंडोगैमी है उस कास्ट की बहुत सारी जो सोशल वैल्यूज है, ओके, देन रिमेन इंटैक्ट एंड गेट पास्ड ऑन, ओके, थ्रू जनरेशंस. ओके, देन व्हाई द चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन इट. तो यहाँ पे 6-7-8 पॉइंट आपने लिखे. अब ये पूरा सेपरेट क्वेश्चन है, उसको सेपरेट क्वेश्चन एड्रेस करना, एज अ डील करना कि व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन इट. ओके, और क्यों ये सोशल वैल्यूज डिसकंटिन्यू हो रही है, इनको इंपैक्ट हो रहा है किस किस फैक्टर का. तो इसमें सबसे मेजर ट्रेंड है गाइस न्यूक्लियर फैमिली. ओके, इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन जो है, ओके, वाज नॉट एनी रिलीजन और एनी अदर फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिया की फैमिली सिस्टम. और इसमें ज्वाइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होना, न्यूक्लियर फैमिलीज का आना, विच इज वन ऑफ द मेजर रीजन. देन अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉस्मोपोलिटन कल्चर, ये भी काफी हो रहा है, अर्बनाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ cosmopolitan culture. Okay, cosmopolitan culture is breaking down, इंडियन कल्चर इज ब्रेकिंग डाउन, एंड एक नया कॉस्मोपोलिटन कल्चर जो बन रहा है अर्बनाइजेशन में, इसमें ही सोशल वैल्यूज पे काफी इंपैक्ट हो रहा है.
देन ग्लोबलाइजेशन या लिबरलिज्म के साथ जो इंडिविजुअलिज्म पैदा हो रहा है लोगों में, इसमें भी सोशल वैल्यूज इंपैक्ट हो रही है। देन मोरालिटी के नॉर्म, जो ट्रेडिशनल मोरालिटी के नॉर्म थे, सोशल नॉर्म्स थे मोरालिटी के, वो अब चेंज हो रहे हैं एंड न्यू मोनॉर्म्स ऑफ मोरालिटी आर कमिंग अप। देन मीडिया इन्फ्लुएंस एंड डिजिटल कनेक्टिविटी, और इसकी वजह से पीपल आर गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट सोशल वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, न्यू कल्चर्स, गिवन ग्लोबलाइज वेस्टर्नाइज कल्चर, और वो उनका भी काफी इंपैक्ट हो रहा है। देन ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो ब्रिंगिंग टुगेदर डिफरेंट कल्चर्स, ओके, कल्चरल मिक्सिंग जो हो रहा है, और इसमें भी ट्रेडिशनल वैल्यूज, ओके, जो नॉट सो स्ट्रांगली कुड स्टैंड दिस ग्लोबलाइजेशन, वो वीकन होती जा रही है। देन वर्क कल्चर्स, फिर अभी जो वर्क कल्चर है गाइस, अभी ऐसे यूनिक पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको डालने पड़ेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अब पहले हमारे मॉम डैड जो है हर रिलेटिव की शादी वगैरह अटेंड करेंगे, इवेंट्स अटेंड करेंगे, फेस्टिवल्स अटेंड करेंगे, बट लार्जली आज गाइस हमें हॉलीडेज ही नहीं मिलते बिकॉज ऑफ द न्यू वर्क लाइफ, वर्क कल्चर, या ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सेट्रा का जो वर्क कल्चर है, तो इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेंड ईच एंड एवरी रिलेटिव्स फेस्टिवल्स, इवेंट्स, मैरिजेस, ऑल दिस फंक्शंस। और इसकी वजह से भले हम चाहते हैं कि हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज हम कंटिन्यू करें, वी डोंट एबल टू कंटिन्यू दैट। तो ये वर्क कल्चर भी एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। देन ह्यूमन राइट्स, जेंडर राइट्स, ये भी जेंडर ट्रेडिशनल सोशल रोल्स चेंज हो रहे हैं। ह्यूमन राइट्स के अवेयरनेस के साथ जो सोशल प्रैक्टिसेस थी जो ह्यूमन राइट्स को इंपैक्ट कर रही थी, वो भी धीरे धीरे चेंज हो रही है, इंपैक्ट हो रही है। एंड देन लीगल रिफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल जलीकट्टू का रिफॉर्म जो हो, या फिर महाराष्ट्र में बुल रेस वगैरह रिलेटेड जो लीगल रिफॉर्म्स आए, बहुत सारी या सोशल प्रैक्टिसेस जो स्यूडो साइंटिफिक थी, सुपरस्टिशियस थी, जैसे महाराष्ट्र में उसके लिए लॉ है, तो ऐसे लॉ को आप मेंशन करो कि सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस एक्ट एक्सेट्रा। तो ये लीगल रिफॉर्म जो हो रहा है, इसके साथ भी ओके बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, एंड दीज वैल्यूज आर बीइंग डिसकंटिन्यूड। ओके, सो यहाँ पे भी गाइज मैंने ऑलमोस्ट 8 पॉइंट्स हाउ इट सोशल वैल्यूज कंटिन्यू, एंड देन 9 पॉइंट्स हाउ दे आर चेंजिंग और गेटिंग इम्पैक्टेड। तो यही मेरा पॉइंट है गाइज कि आप कितने ज्यादा फैक्टर्स लिख सको, उतने फैक्टर लिखते जाओ एंड यू विल गेट द गुड मार्क्स। फिर और एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। ये भी यूपीएससी ने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो यूपीएससी ने पूछे थे। इन व्हाट वेज पैट्रियार्की इंपैक्ट द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया। ओके गाइज, नाउ मैं जो ऐसे पढ़ाता हूँ क्लासेस में, तो मेरे ऑफलाइन क्लासेस में जो ऐसे पढ़ाता हूँ, उसमें बहुत एक मेजर डायमेंशन है जेंडर इश्यूज, और जेंडर इशू के मैं काफी डिटेल में 5-6 घंटे विमेन इशू डिस्कस करता हूँ। बहुत बार यूपीएससी ने उस पे विमेन इशू पे क्वेश्चन पूछा है, और मेरा वो जो ऐसे के 8-9 सेगमेंट हम क्लास में डिस्कस करते हैं, काफी अच्छा हिट रेट है उसका केजी में, जहां पे मैं क्लासेस ले रहा हूं कि लास्ट ईयर के ऐसे पेपर में 8 में से 3 ऐसे पेपर क्लास नोट से थे, और उसके प्रीवियस ईयर 8 में से 4 ऐसे वेयर फ्रॉम द क्लास नोट्स डायरेक्टली। ओके, तो उसमें एक विमेन का सेगमेंट पढ़ाता हूं। अब यहाँ पे उसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि पैट्रियार्की कैसे पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन को इंपैक्ट कर रही है। तो हाउ पैट्रियार्की इज इंपैक्टिंग पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन। तो उसमें गाइज कितने ज्यादा लेवल पे आप एनालाइज करो पैट्रियार्की को, एंड यूनिक पॉइंट जो दूसरों के दिमाग में नहीं आएंगे, आप कितने फास्ट उनको अपने दिमाग में लाके लिख सकते हो, दैट्स वेयर यू गेट द गुड मार्क्स। अब कैसे ये फास्ट आपके दिमाग में आइडियाज लाना, कैसे पॉइंट्स जनरेट करना, इसके लिए मैं अलग से लेक्चर लूंगा। ओके, एक मल्टी डायमेंशनलिटी चार्ट का एक लेक्चर जब होगा, उसमें मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी स्टिकिंग टू द क्वेश्चन, ओके, तो एनलिस्ट यहाँ पे भी क्वेश्चन है कि व्हाट वेज, सो जितने ज्यादा वेज दो तो सीधे लिख डालो वेज इन विच पैट्रियार्की इंपैक्ट्स पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन आर, ओके, डॉट डॉट सीधे। तो पहले तो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स है जिसमें फीमेल्स आर सीन एज अ ब्रेड मेकर्स नॉट ब्रेड अर्नर्स। देन सन मेटा प्रेफरेंस, ऐसे यूनिक पॉइंट लिखो, और जिसकी वजह से जो इशू क्रिएट हो रहा है अनवांटेड गर्ल्स। अब ये सन मेटा प्रेफरेंस क्या है, अनवांटेड गर्ल्स का कंसेप्ट क्या है, मैं नहीं बता सकता, वो आपको जाके खुद स्टडी करना पड़ेगा, या बाद में मैं कभी एक आध लेक्चर इस पे लूंगा तो ये आइडिया एक्सप्लेन करूंगा। तो सन मेटा प्रेफरेंस और अनवांटेड गर्ल्स, इसकी वजह से जो 4-5 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा होना, और ऐसा होता है तो आप 4-5 जो लड़कियां बीच में पैदा हुई, एक लड़का चाहते थे आप उस चक्कर में, तो उन लड़कियों पे ज्यादा एजुकेशन पे खर्चा नहीं किया जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं किया जाएगा, एंड ये जो पैट्रियार्की की मेंटालिटी है इंपैक्ट्स देम फॉर अ लाइफ टाइम, एंड दैट्स व्हाई नेम इज अनवांटेड गर्ल्स। दे डोंट गेट सेम एजुकेशन, सेम हेल्थ केयर बेनिफिट्स,
देन रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी ऑफ फीमेल्स कि उनको कहीं दूसरी सिटी में जॉब लग गया, कहीं घर से दूर जॉब है, देन दे आर नॉट अलाउड टू टेक अप द जॉब्स, सो इट रिस्ट्रिक्ट्स देयर मोबिलिटी। देन आपका ग्लास सीलिंग। अब ग्लास सीलिंग एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिनमें फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड टू हायर लेवल पोजीशन इन एडमिनिस्ट्रेशन और जॉब्स एक्सेट्रा। जिसका एक एग्जांपल जो मैं इथिक्स पेपर में देता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव इथिक्स में, कि इंडिया के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट में सिर्फ 6% आर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स इंडिया आर फीमेल्स। देन जेंडर पे गैप जो लार्जली ऑब्जर्व होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, लार्जली ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी ऑब्जर्व होता है जेंडर पे गैप। और मेजर रीजन ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर वो होता है बिकॉज फीमेल आर बैड एट बार्गेनिंग इन जॉब मार्केट, स्पेशली ऑन सैलरी टर्म्स। फीमेल ज्यादा सेफ्टी, लोकेशन, वर्क का आवर, टाइमिंग्स, इनको ज्यादा फोकस करती है जॉब लेने से पहले। पैकेज 3rd 4th नंबर पे आता है एंड दैट्स व्हाई जेंडर पे गैप, ओके, फीमेल गेट पेड लेस फॉर द सेम सैलरी। तो ये लार्जली पेट्रियार्कल मेंटालिटी की वजह से। देन बहुत सारे स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइसेस जो प्रिवेलेंट है सोसाइटी में, ओके, टुवर्ड्स वर्किंग वीमेन और मिडिल क्लास फीमेल्स एक्सेट्रा। देन सोसाइटी में जो ऑब्जेक्टिफिकेशन चल रहा है, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, आइटम सॉन्ग्स, या ये सारा कल्ट है हाइपर सेक्सुअलाइजेशन का, उसकी वजह से भी काफी इंपैक्ट हो रहे हैं। देन ड्यूअल बर्डन एट होम। द ड्यूअल बर्डन एट होम, ये भी फीमेल को जो हैंडल करना पड़ रहा है, ब्रेड मेकर एज वेल एज ब्रेड अर्नर्स। और ये जो पैट्रियार्की में पैटर्निटी लीव या मेल ऑल्सो शुड टेक केयर ऑफ फैमिली होम, ये कल्ट जो है वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ। देन सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड लॉज, ओके, सोशियो रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड लॉज जो इंडिया में चेंज हो रहे, अपडेट हो रहे, या सोशल रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो इम्पैक्ट करती है फीमेल्स को, जो लार्जली ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स फॉलो करो, या रिलीजियस प्रैक्टिसेस में जो उनको सेकेंडरी पोजीशन है, इसकी वजह से भी इट इम्पैक्ट्स द पोजीशन ऑफ मिडिल क्लास फीमेल्स एटसेट्रा। देन मेल, फॉर एग्जांपल मेल अगर लड़का इंटरकास्ट या लव मैरिज करता है, देर आर डिफरेंट नॉर्म्स, एंड लड़की करती है, देर आर डिफरेंट नॉर्म्स। सो दिस सोशो रिलीजियस नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। देन पैट्रियार्की, डिस्क्रिमिनेशन एंड हैरेसमेंट। और ये जो पैट्रियार्कल मेंटालिटी है सोसाइटी की, उसकी वजह से जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्व होता है सोसाइटी में, घर में, वर्क ऑफिसेस में एक्सेट्रा, और जो हैरेसमेंट होती है, ओके, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्सेट्रा, ये भी इम्पैक्ट करता है फीमेल्स को। देन करियर इंटरप्शंस एंड ब्रेक्स। फीमेल को बहुत सारे करियर इंटरप्शंस होते हैं, ब्रेक्स होते हैं वर्किंग फीमेल्स को। फॉर एग्जांपल शादी के बाद फीमेल सपोज टू शिफ्ट देयर जॉब लार्जली टू गो टू द मेल्स लोकेशन, या करियर इंटरप्शन या ब्रेक्स की वजह से, या बच्चे, चाइल्ड रीडिंग एक्सेट्रा, इसमें मैटरनिटी लीव एक्सेट्रा जो ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर फीमेल टू ज्वाइन बैक द ऑफिसेस एंड सो ऑन, और ये भी काफी इंपैक्ट करता है उनकी पोजीशन को। देन लिमिटेड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ओके, ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑन मोबिलिटी, जैसे लड़के जाके दोस्तों से मिल सकते हैं, कभी भी पार्टी कर सकते हैं, एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, डिस्कस अबाउट वर्क, न्यू वर्क अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलप नेटवर्क, बिल्ड नेटवर्क्स। फीमेल, okay, do not network that much, and this limited networking impacts their life. Then आपका stigmatization of ambition, okay, बहुत सारी उनकी ambition get like stigmatized, या स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ एम्बिशन मतलब अभी जिस तरह से जो एसडीएम ज्योति मौर्य का इशू हुआ, जो भी उनका पर्सनल इशू है, वट एवर शी डिड मे बी मोरली रॉन्ग और सो ऑन, लेकिन जो वर्किंग वीमेन को स्टिग्मेटाइज करने लगे कि ये एजुकेट हो जाती है तो ऐसी करती है वैसी करती है, ये जो है ऐसा स्टिग्मेटाइजेशन इंडियन सोसाइटी में बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे, विक्टिमाइजेशन, स्टिग्मेटाइजेशन, ऑब्जेक्टिफिकेशन, हाइपर सेक्सुअलाइजेशन, ये बहुत सारे प्रिवेलेंट प्रेजुडाइसेस है, दे इम्पैक्ट फीमेल्स। एंड देन लैक ऑफ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स, ओके, सपोर्ट स्ट्रक्चर लाइक जो जॉइंट फैमिली सिस्टम ब्रेक होके न्यूक्लियर फैमिली बन रही है, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स फिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, या बहुत सारे इसमें जॉइंट से न्यूक्लियर फैमिली बनने में आपका जो चाइल्ड केयर होम्स है वो अफोर्डेबल नहीं है, या प्रोसेस फूड इंडस्ट्री एक्सेट्रा वो नहीं है। ओके, जोमैटो इज वेरी बिग, जोमैटो एंड स्विगी इज अ बिग हेल्पर टू द वर्किंग वुमेन इन इंडिया, लेकिन ऐसी और इंस्टीट्यूशंस बननी चाहिए दैट कैन मेक देम इजी फॉर वर्किंग वुमेन, उनकी मोबिलिटी में और टू बैलेंस वर्क लाइफ बैलेंस। तो जोमैटो, स्विगी हो या उबेर, ओला, they are great innovations, yeah, great businesses that are helping the females. Okay, so I hope you are getting these ideas, guys. So एक last question है, अब ये क्वेश्चन है गाइस, व्हाई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761? व्हाई वेयर सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स फॉट एट पानीपत?
तो पानीपत में इतनी ज्यादा बैटल्स क्यों हुई, वाई? अब गाइस इसके ज्यादा आंसर, इवन हिस्ट्री का कोई ऑप्शनल का भी बंदा होगा तो उसको ज्यादा आंसर नहीं आएंगे, 5-6 पॉइंटर्स मिलने वाले। अगर 5-6 पॉइंटर्स मिलने वाले तो फिर यहाँ पे इंट्रो ऐड करो, ओके, या कंक्लूजन में ऐड करना है तो इंट्रो ही बेटर ऐड करो और नीचे फिर पॉइंटर लिखते जाओ कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एंड सेकंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत विच हैपेंड दिस टाइम पीरियड आर द इपोक मेकिंग या एम्पायर शेकिंग बैटल्स हैपन इन पानीपत, and this happened in the Panipat because of few significant reasons which are, okay, तो फिर यहाँ पे एक एक फैक्टर। तो पहला है geographical significance, okay, it is located geographically at the center point in North India, okay, where it is closely connected from all different geographical locations. Then it has crossroads of trade routes, आप पानीपत को कंट्रोल करो, बैटल इंटरप्ट होता है, ट्रेड रूट्स पे इंपैक्ट होता है, यू कैन कंट्रोल द इकोनॉमिक कंडीशंस। देन एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस काफी, इट इज वो रीजन भी काफी क्लोज है टू फर्टाइल तराई रीजन, एंड दैट्स व्हाई एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई है रीजन की, एंड दैट्स व्हाई इट हैज एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंस आल्सो। देन इट अलाउज कंट्रोल ओवर द नॉर्थ इंडिया एट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन, पानीपत को कंट्रोल करो देन यू कंट्रोल द नॉर्थ इंडिया इन मच बेटर वे, और यहां से बाकी सारी एरियाज में आप टेरिटोरियल एक्सपांशन कर सकते हो, नॉर्दर्न हिमालय रीजन मूव, वेस्टर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, या साउदर्न नॉर्थ का का रीजन है मध्य प्रदेश राजस्थान, हर इसमें टेरिटोरियल एक्सपांशन करना पानीपत को बेस बना के इज क्वाइट इजीली पॉसिबल, स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है वो। एंड देन जो प्लेन रीजन है उस एरिया में इतना बड़ा प्लेन बैटल ग्राउंड मिलना, ओके, नॉट पॉसिबल। पानीपत का ये बैटल ग्राउंड इट इज अ लार्ज स्केल मिलिट्री एंगेजमेंट के लिए पॉसिबल है उस रीजन में, एंड लार्ज स्केल मिलिट्री एंगेजमेंट्स की वजह से लार्ज एम्पायर शेकिंग बैटल्स जहां पे ह्यूज मिलिट्रीज इन्वॉल्व दोनों साइड से वेर फॉट इन दिस रीजन, एंड इट हैज अ सिंबॉलिक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जो प्रेसिडेंस बैटल के ऑलरेडी हुए थे काफी, जो माइथोलॉजिकली माना जाता है कि महाभारत का बैटल भी वहीं हुआ, और फर्स्ट सेकंड थर्ड बैटल, सो लार्ज बैटल्स का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस या प्रेसिडेंस होने की वजह से भी बहुत सारे बैटल्स वहीं पे लड़े गए। तो इस तरह के क्वेश्चन गाइस, फैक्टर, फीचर, इनुमरेट, कैरेक्टरिस्टिक, एंड लिस्ट कॉजेस, एज आई एक्सप्लेन यू, और विद दिस क्वेश्चंस आई एक्सप्लेन यू, जितने ज्यादा पॉइंटर्स मारो, जितने ज्यादा मल्टीपल पॉइंटर्स मारो, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। ओके, so thanks for listening guys and stay tuned for other lectures also. ये थर्ड पार्ट है इस जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में डिस्कस कर रहा हूँ उसका। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट कैटेगरी लूंगा, इवेल्युएट, डिस्कस, वो वाले कैटेगरी, और उसके भी 5-6 क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विद आंसर, उसका फॉर्मेटिंग कैसा होना चाहिए। ये जो अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, एनलिस्ट, एन्यूमरेट, व्हाई, हाउ, कॉजेस एक्सेट्रा, इसमें फॉर्मेटिंग का ज्यादा पार्ट नहीं है। इंट्रो कंक्लूजन पे रादर वर्ड वेस्ट करना विल बी वेस्टेज ऑफ वर्ड्स, मार्क्स ज्यादा पॉइंटर्स में आएंगे तो ज्यादा पॉइंटर एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। कैसे ज्यादा पॉइंटर्स लिखो इसके लिए भी मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, मल्टी डायमेंशनल आंसर्स कैसे लिखते हैं, उसके लिए अलग से मेरा यूट्यूब चैनल बाद में चेक करना, यू विल गेट दैट रिकॉर्डिंग ऑल्सो लेटर ऑन। So thanks for listening guys, and do share this channel of Darshanik IAS with your friends and help me grow. So thanks for listening guys, bye bye, and see you in the next lecture.